Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So today I'm here with something new and very important for all the ACCA students, and that's a professional English. So ACCA, as we are studying the professional courses, that's ACCA, and being a ACCA student, we are more focused on the technical knowledge like IFRS, taxation, audit, but what about the way we communicate to other? Many fail in the exams and the workplace not because they don't know the answer, but because they can't express or explain anything clearly. Okay, so whether it's writing the exam answer, drafting professional emails, or explaining concept in an interview, your English skills matter. The examiner looks for the clarity, structure, and the professional tone, and guess what? Even in your career, client employers value a good communication just as much as technical expertise. So that's why I'm starting a new initiative to help a ACCA student to improve their professional English, from writing better exam answer to sounding confident in the meetings or like in the organization meeting in the organization. I will be sharing a tips, trick, and practical exercise to level up your communication skills. So if you want to master your English for your future career, so don't forget to like, share, and subscribe my channel, and let me know in the comment box what's the biggest challenge you face in the communication. All right, and to access the video of the English, what you need to do is you need to go to the my channel, and there is a separate playlist I have been created today. If you can see, yeah, professional English. From here I will upload a small the things that you need to improve, and I hope this video will be useful. Do let me know in the comment box if you like this video. Thank you so much. Have a good day. Everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. In today's video we will do one more long question, and the question name is Sparkler Co, and this is from the topic cash flow statement. Previously I have solved a few questions and the few was remaining, so in today's video we will do that. So I have solved approx 85 to 90% of this kit video, and the full video is available on my YouTube channel at free of cost. Please note down, there is no any membership or subscription that you need to pay it out in order to access the video. It's full free of costs, so hurry up guys, check it out my those video, and don't forget to subscribe my channel. वीडियो फटफट देखो, अदरवाइज क्या पता मेरे में भी सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप का रूल्स लग जाए क्या। तो आज के वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे स्पार्कलर को, एंड ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। सो देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पीएनएल देगा करंट ईयर का, एंड 2 ईयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हम लोग इंक्रीज डिक्रीज इन द एसेट लाइबिलिटीज और लाइक डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन के लिए, जो सर्टेन कैलकुलेशन के लिए हम लोग को 2 ईयर्स का फिगर चाहिए एसओएफपी का। पीएनएल का 1 ईयर का देगा, दैट्स फाइन। एंड फ्यू नोट्स रहेगा, जैसे कि इस केस में नोट्स दे हैव बीन प्रोवाइडेड सेज दैट कंपनी डिस्पोज सम ऑफ द आइटम ऑफ plant and equipment for sale proceed of 2 million, and the carrying amount of item disposed was 1.5 million। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज करें, सो ये कैरिंग अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द पीपीई। ठीक है, एंड ये डिस्पोज करने के बाद वी गॉट सम कैश, राइट, जो कैश इन हो रहा है। हम लोग आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखेंगे ये कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। ऑल राइट, एंड देन नेक्स्ट वी हैव दैट कंपनी परचेज पीपीई एट द कॉस्ट ऑफ 21 million। इन एडिशन लैंड एंड बिल्डिंग वे रिवैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। सो हम लोग
रिवैल्यूएशन तो नॉन कैश आइटम है, दैट्स फाइन, बट ये जो क्या हम लोग ने पीपीई जो परचेज किया है इससे हमारा कैश क्या हुआ है, बाहर गया है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, so इसका भी इम्पैक्ट देखेंगे while doing the calculation. And Sparkler co-estimated that income tax liability arising on the profit for the year was 3.5 million. All right. So what the requirement says, using the information available, complete the statement of cash flow using the indirect method for Sparkler Co. for the year ended 30 September 20x9 in accordance with the requirement of IAS 7 statement of cash flow. See, हम लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, it comprise of consist of 5 things. That's your statement of profit or loss, statement of financial position, statement of change in equity, statement of cash flow एंड नोट्स और डिस्क्लोजर. ठीक है, ये 5 चीज मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, राइट. अब द मेन थिंग इज व्हाई डू वी नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना. सो सम ऑफ यू माइट से कैश इज द किंग, या दैट्स अ गुड आंसर, बट the whatever the profit reflected by or shown in the statement of profit or loss, हो सकता है कि उतना बराबर का कैश कंपनी के पास ना हो, एंड ये एक्चुअल में होता है. एंड व्हाई सो, बिकॉज वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एक्रुअल मेथड, राइट. एक्रुअल बेसिस में हम लोग पीएनएल बनाते हैं. हमारा लाइक जैसे कैश कब भी रिसीव हो और पे हो रहा है मतलब नहीं होता है, बट अगर ट्रांजेक्शन इंकर्ड हुआ है देन वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन एक्रुअल बेसिस के अकॉर्डिंग. सो कैश कब आया कब गया मतलब नहीं होता है. इसीलिए जैसे अब यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट कितना है फॉर द ईयर, इट्स 14,500. उन्होंने 3 जीरो कॉमन लिया है, ऑलराइट. सो दैट मीन्स 14.5 मिलियन. बट इफ यू लुक एट द कैश कितना है हमारे पास, कैश इज ओनली 3 मिलियन. मतलब प्रॉफिट फॉर 14.5 मिलियन, दैट्स अ वेरी गुड फिगर, राइट. बट अगर कैश देखा जाए तो क्या हमारे पास सिर्फ 3 मिलियन. तो हो सकता है कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उतना बराबर का कैश ना हो, और हो भी सकता है उससे ज्यादा. आई एम नॉट सेइंग ओनली नेगेटिव थिंग्स, देयर माइट बी द पॉजिटिव सिचुएशन एज वेल. ठीक है. सो अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं किस किस एक्टिविटी से कितना कितना पैसा आया और गया. जैसे यहाँ पे 3 एक्टिविटी एलोकेट किया गया है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, एक और क्या है हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए, या एक है फाइनेंसिंग. ठीक है. तो इन तीनों एक्टिविटी से कितना पैसा आया और गया हम लोग देखते हैं, एंड लास्ट में जो मूवमेंट हम लोग देख के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैच करते हैं. ये हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त इट विल बी मोर क्लियर, बट अभी के लिए इतना सोचे कि प्रॉफिट जो दिखेगा कंपनी में उतना बावजूद कैश नहीं होगा. ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैश में पे करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी, सप्लायर का पेमेंट, कोई गुड्स खरीदने जाना है, कुछ दिन के लिए उधार देगा बट कभी ना कभी तो पे करना ही है, राइट. सो हो सकता है कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है उतना बावजूद कैश ना हो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कंपनी किस एक्टिविटी से कैश जनरेट कर रही है और यूज कर रही है, सब ये पता चलेगा. ठीक है. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम 3 एक्टिविटी देखते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मीन्स कंपनी का जो नेचर है जिसमें ऑपरेट कर रही है उससे कितना पैसा आ रहा है. एंड एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मतलब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की है, उसको बेच के भी कहीं पैसा तो नहीं ले रही है. ठीक है. एंड उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, मतलब फाइनेंस मतलब लोन इश्यू करके या फिर शेयर इश्यू करके या फिर डिविडेंड पे कर, ये सब चीज फैक्टर हम लोग देखेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ कैश फ्लो. ठीक है. अब एक चीज आता है ट्विस्ट, जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, इन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है. सो यहाँ पे एक मेन चीज क्या है आपका, कि अगर आप फॉर्मेट देखोगे आपका 2 मेथड होते हैं कैश फ्लो का, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन में ज्यादा करके इनडायरेक्ट ही पूछता है, डायरेक्ट बहुत कम पूछता है. ठीक है.
सो अगर आप देखोगे ना, ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको छोड़ के रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी सेम, ठीक है। बट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वन इज योर डायरेक्ट मेथड, अदर इज द इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इट्स वेरी इजी अगर दोनों देखा जाए तो। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर से कितना पैसा आया, हम लोग ने सप्लायर को कितना पे किया, और हम लोग ने एम्प्लॉय को कितना पे किया, बिकॉज यही ट्रांजेक्शन जो होती है कैश में होती है, ठीक है। ये करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा दैट विल बी आवर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर के लिए हम लोग रिसीवेबल लेजर देखेंगे, पेमेंट टू सप्लायर के लिए पेएबल लेजर देखेंगे, और सैलरी वाला पोर्शन के लिए वेजेस एंड सैलरी पेएबल देखेंगे, ठीक है। ये वहां से पता चल जाएगा। अब इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, हम लोग ये कुछ नहीं देखेंगे, वी विल सिंपली टेक द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द पीएनएल आइटम, उसमें से नॉन कैश कैश आइटम और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम एक्सपेंस होगा वो डिडक्ट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइनेंस चार्ज को हम लोग ऐड बैक करेंगे, बिकॉज ये ऊपर नीचे जाके फिर से डिडक्ट होती है। अगर देखो फॉर्मेट देखोगे तो वहां पे नीचे से हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, इसीलिए हम लोग इसको पहले ऐड करेंगे क्योंकि वो नीचे जाके डिडक्ट होना ही है। देन इन्वेस्टमेंट इनकम पर पीएनएल। अब क्या होता है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ना हम लोग जो इन्वेस्टमेंट इनकम जो होता है ना वो भी ऐड करके ये फिगर ड्राइव हुआ रहता है, बट ये हमारा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं, सो दैट्स व्हाई वी विल डिडक्ट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम हो गया, इसीलिए हम लोग इसको ऐड बैक करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर आने वक्त तक हम लोग डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किए रहते हैं। सिमिलरली बाकी का आइटम भी वैसा ही है। और ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के केस में क्या है कि अगर आपका करंट एसेट रिड्यूस होता है, करंट एसेट रिड्यूस होता है, दैट मीन्स हम लोग ने जैसे इन्वेंट्री की बात करते हैं, अगर आपका इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ दैट मीन्स हम लोग ने इन्वेंट्री सेल किया और पैसा आया, तो उसीलिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। और रिसीवल के केस में भी वही है कि अगर रिसीवल बढ़ रहा है तो हम लोग डिडक्ट करेंगे, और घट रहा है तो ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा आया, घटने का मतलब पैसा कस्टमर से आया, इसीलिए ऐड करेंगे। फिर करंट लायबिलिटी जैसे ट्रेड पेबल में उल्टा होगा, अगर आपका ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, बट डिक्रीज हो रहा है डिडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डिक्रीज मतलब हम लोग ने सप्लायर को पैसा दिया, पैसा कंपनी से बाहर गया, इसलिए डिडक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये है सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस, एंड द रेस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स इज सेम, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। स्पार्कलर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 20x9। सो उन्होंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिया, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिया। अब हम लोग को ये फिगर कैलकुलेट करना है, एंड रिमेंबर वन थिंग, ये 30 कॉमन लेने के लिए बोल रहा है। सो एग्जाम के प्रेशर में टाइम कांस्टेंट की वजह से ये चीज़ हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू लुक व्हाट इज द फॉर्मेट इन विच द एग्जामिनर वांट अस टू आंसर। जैसे यहाँ पे 30 कॉमन लिया है, और ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट, वो भी चूज करना है। सो पहला क्या है हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें से कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली वी विल टेक द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 18,000। सो डायरेक्टली हम लोग 18,000 रखेंगे, नॉट 80 मिलियन, बिकॉज उन्होंने भी 30 कॉमन लिया है, दैट्स फाइन। सो यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे 18,000 आ जाएगा क्योंकि हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स रख रहे हैं। अब एडजस्टमेंट की बारी। एडजस्टमेंट के लिए पहला क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ रहता है? पीएनएल में। पीएनएल में कौन से पोर्शन में? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने ब्रेक डाउन ही नहीं दिया है। सो नाउ व्हाट टू डू, कैसे कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन? इट्स वेरी इजी। सो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, एक ये टी अकाउंट जैसे मैंने प्रिपेयर किया है, और आप सिंपली एक प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, वो भी बता दूंगी मैं, दोनों मेथड बता दूंगी, एंड विच एवर यू फील इजी यू कैन गो विद दैट, नो इशू, ओके। अब हम लोग को जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया हो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, वी नीड टू गो टू द एसओपी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस देखेंगे। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है, सो इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। ये हमारा
लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। सो ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, पीपी ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था हमारा 85,000, सो मैंने 85,000 यहाँ पे लिया, ठीक है। एंड ये 95,000 क्या है हमारा कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये जो कैरी फॉरवर्ड था ये नेक्स्ट ईयर जाके ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। सो ये अब 2010 के लिए ये ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। अभी ये इस ईयर के लिए 20x9 के लिए ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, तब जाके नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होगा, ठीक है। सो ये हो गया 85,000 ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड इज 95,000, दैट्स फाइन। अब अगर आपको याद होगा नोट्स में दो चीज लिखी थी, एक इन्होंने एसेट को डिस्पोज किया है कितना में 1.5 मिलियन, हम लोग भी 30 कॉमन लेते हैं, सो 1500 मैंने यहाँ पे डिस्पोजल लिख दिया। डिस्पोजल हो रहा है तो हमारा एसेट क्या होगा रिड्यूस, तो इसको कहाँ पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। एंड बी में क्या बोल रहा है हमारा परचेज भी किया, परचेज कितना में 21 मिलियन में, सो यहाँ पे मैंने परचेज का एंट्री रख दिया। परचेज मतलब कि हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, डेबिट होगा, सो 21,000 मैंने बाय टेकिंग द 30 एज अ कॉमन मैंने यहाँ पे 21,000 परचेज ऑन डेबिट साइड में एडजस्ट कर दिया। देन इन्होंने रिवैल्यूएशन भी किया है, इन्होंने क्या है इन एडिशन लैंड एंड बिल्डिंग विल रिवैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। अब ये कहाँ पे मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली इक्विटी एंड लायबिलिटी के सेक्शन में, यहाँ पे जाके देखोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है 3,000, सो अगेन मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके 3,000 ऐड कर दिया, दैट्स फाइन। और कुछ है अब नहीं है, अब इसको एक पल के लिए इसको भूल जाते हैं, ठीक है। ये इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड, डिस्पोजल, परचेज एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैंने इसको ऐड किया बाय एडिंग ऑल दीज थ्री, टोटल होता है हमारा 109,000। इस साइड का ऐड किया तो 96,500, मीन्स क्रेडिट साइड में कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब कितना का डिफरेंस आ रहा है, लेट्स कैलकुलेट दैट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे डाल दिया मैंने। सो अब इन तीनों को ऐड करोगे इट विल बी 109,000, सो दैट डेबिट एंड क्रेडिट विल बी इक्वल, ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, ये हमारा क्या है डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमारा ये डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पे हो जाएगा, मैं लिखती भी चलती हूँ सो दैट कि यू विल नॉट बी कंफ्यूज। सो 18,000, फिर से एक और लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग क्या लेंगे 12,500, और ये क्या होगा हमारा ऐड, क्यों, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट किया था, ये नॉन कैश आइटम है इसीलिए हम लोग ऐड बैक करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नोट्स में कहा था उन्होंने कि कितने में डिस्पोज किया है 2 मिलियन में, बट कैरिंग अमाउंट कितना था 1.5 मिलियन, सो कितना का प्रॉफिट हुआ 500,000 का। सो 500 क्या होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट, 500 विल बी यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग ने ऐड किया था, सो नाउ इट्स टर्न टू डिडक्ट, ठीक है। ओके दैट्स फाइन। अब इंटरेस्ट पेएबल ये कहाँ से मिलेगा, पीएनएल, पीएनएल में जाके देखोगे तो इंटरेस्ट कितना है 2700, सो सिंपल 2700 जाके हम लोग ऐड करेंगे, कहाँ पे गया 2700, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तो अब चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना कितना है हमारे पास 3750 करंट ईयर में, 36,000 पहले में, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, सो लेट मी ओपन द कैलकुलेटर। सो इन्वेंट्री ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है एंड बाय हाउ मच अमाउंट 5250, अब इन्वेंट्री डिक्रीज मतलब हम लोग ने गुड्स सेल किया, ठीक है, तभी तो इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ, सो दैट मीन्स पैसा आया होगा, सो पैसा आया मतलब ऐड, ठीक है, सो यहाँ पे ऐड,
ये नीचे डाल देती है थोड़ा। ठीक है, अब ये हो गया चेंज इन इन्वेंट्री का। नाउ चेंज इन ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल का क्या पोजीशन है? ट्रेड रिसीवल हमारा अगेन डिक्रीज हुआ है, सो 39,250 माइनस 45,000, सो इससे हमारा कितना से डिक्रीज हुआ है? 5750। सो अगेन मतलब पैसा आया है तब भी तो ट्रेड बैलेंस, ट्रेड रिसीवल रिड्यूस हुआ है, सो इट मीन्स अगेन ऐड होगा, ऐड। एंड ट्रेड पेबल्स का क्या पोजीशन है? ट्रेड पेबल्स या हेयर, सो ये भी घटा है हमारा, सो दैट मीन्स पैसा पे किया है हम लोग ने, इसलिए तो घटा ये बैलेंस। सो कितना से घटा? 38,500, 3500 से घटा, सो दैट मीन्स वी नीड टू डिडक्ट। सो ट्रेड पेबल्स कितना होगा? 3500, ये हमारा सब ट्रैक होगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर सेइंग नॉट एप्लीकेबल। अब इंटरेस्ट पेड की बात करें, सो आइटम 1 कहाँ पे? यहाँ पे है, सो इंटरेस्ट पेड। अब एक्चुअल में इंटरेस्ट पेड कितना हुआ? ओके सॉरी, मैंने इसका दूसरा मेथड बताना ही भूल गई। इसको ऐसे कर सकते हो आप, ब्रॉड फॉरवर्ड इज योर 85,000, ठीक है, एंड आपका कॉपी एंड पेस्ट, सो आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना बोला था क्वेश्चन ने? इट्स 95,000, ठीक है। सो अब एसेट परचेज कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज, सो वी विल ऐड दिस। एंड अगेन रिवैल्यूएशन सरप्लस कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज, ओके। बट अगर डिस्पोजल कर रहे हैं तो उस केस में हमारा वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी, अब हम लोग डेप्रिसिएशन के वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिस माइनस सम दिस, द थिंग इज सेम, ठीक है, उतने वैल्यू आएगा। ऐसे दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सो वेयर वाज वी? ओके, इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट एक्चुअल में पेड कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है। पीएनएल में तो एक्रूअल दिया होगा, जो इस साल का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो होगा। अब एक्चुअल में इंटरेस्ट पेड कितना हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए अगेन यू कैन डू दिस कैलकुलेशन फ्रॉम द बोथ ऑफ दिस मेथड। मैं इस तरीके से करूंगी, इंटरेस्ट पेड। अब अगर आप देखोगे बैलेंस शीट का आइटम, वहां पे इंटरेस्ट एक्रूड दिया होगा करंट लायबिलिटी में। सो इंटरेस्ट एक्रूड हमारा क्या है? लेट मी रिमूव ऑल दिस, ओके। सो ये हमारी लायबिलिटी है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था? इट्स 500, और कैरी फॉरवर्ड कितना है? इट्स 625। रिमेंबर, कैरी फॉरवर्ड उल्टा रहेगा आपका। ब्रॉड फॉरवर्ड जैसे लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में होगा, बट कैरी फॉरवर्ड डेबिट साइड में होगा क्योंकि नेक्स्ट जाके इधर क्रेडिट साइड में आएगा, इसीलिए। ठीक है, अभी हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो है जो पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ है, एंड व्हाट इज दैट? इट्स 2700, मतलब ये एक्सपेंस ये हमारा लायबिलिटी बढ़ाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हमारा? 2700। सो एक्चुअल में कितना पेड किया वो निकालने के लिए वी नीड टू ऐड दिस टू, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग को इतना वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? कितना से डेफिसिट है इस साइड में? सो 25775, ये हमारा इंटरेस्ट पेड है, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट पेड है। तो इस आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है हमारे पास? 5 से, एंड इंटरेस्ट देन कितना एक्सपेंसेस? 2700, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना है? कैरी फॉरवर्ड अमाउंट इज 625। सो ऑब्वियसली डिफरेंस क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट पेड। Okay, so this one is your interest paid.
अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे 2575 आइटम 1 में जाके, आइटम 1 में चूज करना है। अब आप तीनों कैलकुलेट कर लो, जिसमें जो वैल्यू 2575 देगा वो करेक्ट आंसर है। और व्हाट यू कैन डू इज, अब यहाँ पे देखो 2700 में 500 ऐड हो रहा है, 2700 में 500 माइनस हो रहा है, सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन में तो ऐड तो कर रहा है बट 625 क्या होगा, माइनस होगा, इन्होंने प्लस कर रखा है इसीलिए इनकरेक्ट है। एंड लास्ट वन परफेक्ट है, 2700 प्लस 500 माइनस 625 करेंगे तो हमारा 2575 आएगा एंड लास्ट वन इज द करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड के लिए हम लोग सेम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, we will do same calculation as we did for the depreciation and the interest one. So income tax paid, ठीक है। इसके लिए अब हम लोग जाएंगे वापस एसओएपी में, कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज बुक हुआ होगा, here it is इनकम टैक्स। सो ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है हमारा 4000 एंड कैरी फॉरवर्ड इज 3500। ठीक है, और इस साल का टैक्स कितना है, ये आपका नोट्स में दिया हुआ था, याद है आपको नोट्स में, या फॉर द ईयर वॉज 3500। सो इस साल का टैक्स लाइबिलिटी इज 3500। आई एम टेकिंग द 30 एज अ कॉमन। अब ये करने के बाद हमारा डिफरेंस इस साइड ये 7500 हुआ, अब इस साइड से 3500 था, सो डिफरेंस कितना का आया था 4000 का। सो इसलिए 4000 इज योर टैक्स पेड अमाउंट, इतना का हम लोगों ने टैक्स पेड किया है। अगर इस तरीके से जाना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा, सेम है, सब चीज सेम है, एक बार आप खुद ट्राई करना, सब चीज सेम है। ब्रॉड फॉरवर्ड की जगह पे आएगा 4000, कैरिड फॉरवर्ड की जगह पे आएगा 3500, टैक्स इंटरेस्ट की जगह पे टैक्स आएगा विच इज 3500 एंड टैक्स पे वैसे डिफरेंस करके कैलकुलेट करना है। सो इट्स 4000। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस एज वेल। सो अब ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना, हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था ना, सो इट विल बी ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट। अगर आप फॉर्मेट देखोगे या the both of these item will be subtracted. ठीक है, okay, the next we have a cash flow from investing activity, cash purchase of PPE, property plant and equipment. so हम लोग ने कितना में परचेज किया था property plant and equipment, ये भी नोट्स में दिया हुआ था, राइट। तो सेकेंड वाले नोट्स में हम लोग ने पीपीई परचेज किया है एंड दैट्स अ कॉस्ट 21 मिलियन। हम लोग ने 30 कॉमन लेंगे और 21,000 यहाँ पे डालेंगे एंड ये क्या होगा हमारा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा, सॉरी ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा बिकॉज हमारा कैश आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है ना, जहां जहां खर्चा होगा वहां सब्ट्रैक्ट, पैसा आया तो ऐड। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट होगा। अब नीचे वाला को क्या है, डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम लोग ने कितना प्रोसीड लिया प्लांट एंड इक्विपमेंट बेच के 2 मिलियन, सो दैट मीन्स 2000 हमारा ऐड होगा, पैसा आया। देन नेक्स्ट वी हैव, ऐड नहीं करना है अब यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल है। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड ऑफ लोन रेज्ड। अब लोन रेज्ड का प्रोसीड कितना आया ये देखना पड़ेगा, लोन का अमाउंट बढ़ा हुआ है क्या, अब देखा जाए तो लोन का अमाउंट भी बढ़ा हुआ है, बाय हाउ मच, बाय 5000। मतलब कंपनी ने 10% डिबेंचर एडिशनल इशू किया जिसकी वजह से पैसा आया, सो 5000 विल बी एडेड क्योंकि पैसा आया, सो यहाँ पे 5000 होगा, इट विल बी एडेड। प्रोसीड ऑफ शेयर इशू, शेयर इशू का देखा जाए, शेयर इशू हमारा कितना कितना है 6000 यहाँ पे हो गया और शेयर प्रीमियम का 2000। सो हम लोग अगर शेयर प्रोसीड का देख रहे हैं तो इन दैट केस वी विल लुक बोथ शेयर कैपिटल एज वेल एज शेयर प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल हमारा 6000 से बढ़ा है एंड शेयर प्रीमियम बाय 2000, सो एडिंग दिस टू विल बी 8। ठीक है, सो 8000 होगा हमारा यहाँ पे प्रोसीड ऑफ शेयर इशू। अब डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं पूछ रहा है, सिंपली दे आस्क्ड यू टू चूज द कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न अर्निंग ब्रॉड फॉरवर्ड लेंगे
ठीक है। उसके बाद उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉट द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। एंड उसके बाद जो कैरी फॉरवर्ड रिटर्न अर्निंग का जो वैल्यू दिया होगा उसको डिडक्ट कर देंगे। ऐसा देखा जाए तो ऑप्शन ए सिम्स टू बी फिजिबल। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, सारा फिगर अवेलेबल है यहाँ पे। रिटर्न अर्निंग ब्रॉट फॉरवर्ड ये हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो जाएगा ऐड करने के बाद, एंड डिडक्ट कर देंगे ये कैरी फॉरवर्ड विच इज 6875। ये करने के बाद हमारा डिविडेंड पेड का अमाउंट आ जाएगा। अब डिविडेंड पेड हो रहा है तो कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा, सो सबट्रैक्ट। सो ऐसे ये आप कैश फ्लो का क्वेश्चन कर सकते हो। एंड आई होप ये आपको इजी लगा होगा सॉल्व करते वक्त। सो गिव इट ट्राई बाय योर एंड and do let me know in case you have confusion. I will try my best to address your query. So thank you so much guys for watching my video. Have a good day.